باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، آج میں آپ کے سامنے چونکہ زمین گول ہے اور ایک چیز جو ہے وہ خط استوا ایک زمین کے بالکل بیچو بیچ جو ہے وہ خط استوا فرض کیا جاتا ہے، یہ قطب شمالی اور یہ قطب جنوبی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے شمال اور جنوب دو، شمال کی طرف نصف کرہ اور جنوب کی طرف نصف کرہ، آپ کے سامنے میں خط استوا پر چھری کو رکھ کر کاٹتا ہوں، اور میں آپ کو دو 90 درجات شمال میں اور 90 درجات جنوب میں دکھاتا ہوں۔ یہ سیب کا دانہ ہے، ذرا دیکھیں اس کو اچھی طرح ساتھی۔ اب اس کو میں نے خط استوا پر کاٹا، یہ دیکھیں بھائی، اس کے دو حصے ہو گئے، یہ شمالی نصف کرہ ہے اور یہ جنوبی نصف کرہ ہے، یہ شمالی نصف کرہ ہے اور یہ جنوبی نصف کرہ ہے۔ اب یہاں سے جہاں میں نے کٹ لگایا یہاں سے یہاں تک 90 درجہ ہے اور یہاں سے یہاں تک بھی 90 درجہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گول چیز کوئی بھی ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ کوئی بھی کرہ ہو، گلوب ہو، گیند نما کوئی بھی چیز ہو، اس کا بیچوں بیچ جو درمیان ہوتا ہے وہ استوا ہوتا ہے، یعنی درمیان خط استوا کہلاتا ہے وہ۔ تو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بالکل درمیان میں خط استوا ہے۔ اس کو دو حصوں میں نے یوں تقسیم کر دیا۔ تو یہ جو ہے گویا کہ اب خط استوا مبدا ہے عرض البلد کا، تو اب 90 درجات شمال میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 90 گول دائرے بنا دیں، 89 گول دائرے بنا دیں یہاں پر اوپر کی طرف، اور 89 گول دائرے بنا دیں آپ نیچے کی طرف، اور اوپر انتہا پہ جو ہوگا 90 پر وہ نقطہ ہوگا، وہ نقطہ ہوگا۔ اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ یہ دیکھیں میں نے مالٹا، میں نے سیب جو ہے یہ کاٹ دیا خط استوا پر۔ تو یہ عرض البلد کے لیے، اب مثال کے طور پر ہر عرض پر ہم 15 15 15 15 15 15 پر ہم کٹ مارتے ہیں یوں، تو اوپر کی طرف کٹتے ہوئے جائیں گے، ادھر نیچے کی طرف کٹ 15 15 15 15 نیچے کی طرف کٹ ماریں گے، یوں جو ہے گویا کہ ہمیں سمجھ میں۔ اب دیکھیں بھائی، یہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کو، شمالی نصف کرہ کو نارتھ ہیمسفیئر اور ساؤتھ ہیمسفیئر کو میں نے ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا۔ اب یہ میں نے جوڑ دیا، تو اب یہ خط استوا ہے۔ اب آتے ہم طول کی طرف بھائی۔ طول میں چونکہ عرض میں تو تقسیم ہوتی ہے شمالاً جنوباً، عرض میں کرے کی تقسیم ہوتی ہے شمالاً جنوباً، تو خط استوا سے شمال میں بھی 90 درجہ اور خط استوا سے جنوب میں بھی 90 درجہ۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ خط استوا سے شمال میں 90 درجہ جو ہے، چونکہ ایک دائرہ، کوئی بھی دائرہ جائے گا عرض کا، کوئی بھی دائرہ وہ پورے کرے کے گرد گھومے گا، لیکن خط استوا والا دائرہ سب سے بڑا ہوگا اور اوپر کے دوائر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ تو خط استوا کا دائرہ اوپر والا ہوگا اور خط استوا کا دائرہ بالکل درمیان والا ہوگا، یہ زمین کے بالکل پیٹ بیچوں بیچ ہوگا، یہ سب سے بڑا ہوگا، اور جیسے جیسے اوپر کی طرف آئیں گے تو دائرے چھوٹے ہوتے جائیں گے، چھوٹے ہوتے جائیں گے، چھوٹے جائیں گے، یہاں تک کہ عین قطب شمالی پر ایک نقطہ رہ جائے گا، ایک نقطہ رہ جائے گا۔ تو اس چیز کو کتاب تفہیم الفلکیات کے اندر جو ہے آگے جو ہے ایک صفحے پر ایک چارٹ دیا گیا ہے، خط استوا پر جو ہے گویا کہ وہ 25,000 میل زمین، اور اوپر کے ہر درجے پر جو ہے وہ کم ہوتے 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 کم ہوتا چلا گیا ہے دائرہ۔ تو یہ تو آپ اس چیز کو سمجھیں، یہ تو خط استوا والا۔ اب ہم آتے ہیں طول کو سمجھانے کے لیے۔ ایک مالٹا ہے، دیکھیں ذرا، ایک مالٹا ہے۔ اب مالٹے کو میں نے بالکل درمیان سے یوں چھیل دیا، اب میں نے چھیل دیا۔ اب اس کے اندر 12 قاشے ہوں گے، تقریباً 12 قاشے۔ ویسی چلو اس کے اندر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ قاشے 24 ہیں، کل قاشے
24 है मिसाल के तौर पर, होते तो नहीं है किसी माल्टे में 24 काशे, लेकिन चलो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि 24 काशे हैं इसमें। अब ये देखो, इसको मैंने यूं दरमियान से काट दिया। सेब को तो मैंने पेट पर काटा, लेकिन इसको मैंने क़ुतुब शुमाली और क़ुतुब जनूबी में आधा कर दिया। अब निस्फ़ कुर्रा शर्क़ी और निस्फ़ कुर्रा ग़रबी, या निस्फ़ कुर्रा शर्क़ी और निस्फ़ कुर्रा ग़रबी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री और यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री, दोनों मिल जाएंगे तो 360 हो जाएंगे। दोनों मिल जाएंगे तो 360 हो जाएंगे, और अलग अलग 180 डिग्री 180 डिग्री अलग हो गया। आप लोग भी इस तरह का माल्टा ले लें, उसको छील लें और देख लें। अब मैं एक काशा मिसाल के तौर पर हटाता हूँ। इसमें मिसाल के तौर पर 24 काशे हैं, तो एक काशा 15 डिग्री का होगा, एक काशा 15 डिग्री का होगा, यानी इसमें 15 दर्जात होंगे। इसको हम 15 हिस्सों में अगर तकसीम कर दें तो कुल इस माल्टे के जो है गोया कि अगर एक को हम 15 हिस्सों में तकसीम कर दें तो कुल माल्टे के 360 काशे बन सकते हैं। इसी तरह ज़मीन के एक एक दर्जे पर अगर हम कट लगाएं, एक एक दर्जे पर कट लगाएं तो 360 काशे हमें मिलेंगे, 360 काशे। अच्छा, ये बात मैंने आप लोगों को बताई। ये गोया के मशरक़ी निस्फ़ कुर्रा और ये मगरबी निस्फ़ कुर्रा। लेकिन ये बात याद रखें कि तूल के अरस के खतूत ख़त इस्तिवा से शुमाल तक 90 दर्जा और ख़त इस्तिवा से जुनूब तक 90 दर्जा, 90 और 90 180। जुनूब के दर्जात को माइनस के साथ गिना जाता है और शुमाल के दर्जात को प्लस के साथ गिना जाता है। और तूल के अंदर ये होता है कि मिसाल के तौर पर यह ख़त लंदन है तो इसके बैक साइड पीछे इधर इंटरनेशनल डेट लाइन होगा। ये एक तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन और दूसरी तरफ जो है वो GMT यानी ख़त लंदन। अब पीछे की तरफ जो है वो है कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन होगा और आगे की तरफ जो है ये ख़त लंदन होगा, और ये दोनों से एक दूसरे पर बुअदल मशरिक़ैन पर वाक़ हैं, यानी 180 डिग्री पर वाक़ हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 180 डिग्री होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 180 डिग्री होगा। आप ये सवाल कर सकते हैं कि आरज़ के फिर जो है गोया कि इस तरह 360 दर्जात क्यों नहीं बनते? तो वो आरज़ के 360 दर्जात इसलिए नहीं बनते कि आरज़ में एक पूरा दायरा जो है वो कुर्रे के गिर्द घूम जाता है। मसलन 25 अर्जुल बलद का एक दायरा पूरे कुर्रे के गिर्द घूमेगा, तो 25 जिस तरह आगे से है तो पीछे से भी 25 होगा। लेकिन तूल की ये है कि एक दायरा जो है निस्फ़ दायरा क़ुतुब शुमाली से क़ुतुब जनूबी तक खींचा जाएगा। मसलन या क़ुतुब शुमाली या क़ुतुब शुमाली से क़ुतुब जनूबी तक सिर्फ आधा दायरा खींचा जाएगा, दूसरी तरफ से कोई दूसरा ख़त जाएगा, दूसरी तरफ से वो वाला ख़त नहीं होगा, कोई दूसरा ख़त होगा। तो ये चीज़ जहन में रहे कि तूल के खतूत क़ुतुब शुमाली से क़ुतुब जनूबी तक खींचे जाते हैं। मसलन ख़त लंदन से लेकर दोबारा ख़त लंदन तक 360 जो है हम लाइनें खींच सकते हैं एक एक दर्जे पर, लेकिन हमने आम ग्लोबों पर 15-15 दर्जे पर होता है और ये वक्त को ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, एक अहम तरीन बात ये याद रखें कि तूल के खतूत से वक्त ज़ाहिर होते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, देखें ज़रा, मैं नक्शा दिखा रहा हूँ आपको। तूल के खतूत से औकात की तायीन होती है, तूल के खतूत से औकात की तायीन होती है। ये देखें ज़रा, ये मैंने ख़त लंदन पर लाइन खींच दी हूँ, ये ख़त लंदन है और ये ख़त इस्तिवा है, ये ख़त इस्तिवा है। अब ख़त लंदन से 180 डिग्री मशरिक़ में और 180 डिग्री मग़रिब में 12 खतूत तूल के इधर हैं और 12 खतूत तूल के इधर हैं। तो अब पहले ख़त पर जो है मिसाल के तौर पर यहाँ से वक्त शुरू होता है। यहाँ अगर रात के 12 बजेंगे तो यहाँ तारीख़ तब्दील होगी। मिसाल के तौर पर आज जो है 17 मार्च है, तो 17 मार्च को रात के 12 बजे गुज़िश्ता दिन, जैसे यहाँ रात के 12 बजे थे तो यहाँ तारीख़ तब्दील हो गई, 18 मार्च हो गई। फिर 1 घंटे के बाद यहाँ 18 मार्च हो गई, फिर 1 घंटे के बाद यहाँ 18 मार्च हो गई, फिर 1 घंटे के बाद यहाँ 18 मार्च हो गई, फिर 1 घंटे के बाद यहाँ 18 मार्च हो गई, फिर 1 घंटे के बाद यहाँ, इस तरह करते 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 जब पाकिस्तान में रात के 12 बजे, गुज़िश्ता रात के 12 बजे, तो पाकिस्तान में 17 तारीख़ हो गई। इस तरह ये सिलसिला जो है चलता रहता है। एक ये
दूसरी बात यह है कि ख़त लंदन से टाइमिंग को नापा जाता है। लंदन को बुनियाद बनाकर पूरी दुनिया के लिए टाइमिंग मुकर्रर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर यह ख़त 75 है, ये ख़त 75 है। ख़त लंदन से 75 चूँकि टाइम जोन में वो हमारा पाकिस्तान का मेयारी वक्त उसके साथ मुकर्रर है, तो अब पाकिस्तान चूँकि 75 पर पाकिस्तान के लिए मेयारी वक्त का तूल जो है वो ख़त 75 है। मेयारी तूल का ख़त जो है वो ख़त 75 है। अब हर 15 दर्जे में 1 घंटे का फ़र्क आता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था उसूल कि ज़मीन अपने महवर पर यूँ 1 मिनट में 17.5 मील घूमती है, 2 मिनट में 35 मील घूम जाती है, 4 मिनट में 70 मील घूम जाती है और 70 मील 1 दर्जा है। ज़मीन की कुल गोलाई 25,000 मील मैंने आपको बताई थी। और ज़मीन के ऊपर जो दायरा ख़त इस्तिवा पर बनता है, चूँकि हर दायरा 360 दर्जात का होता है, अगर 360 को 25,000 में तकसीम करें तो 1 घंटे में 1035 मील आते हैं और 15 दर्जात बनते हैं। 1 घंटे में ज़मीन 15 दर्जे घूम जाती है, यानी 4 मिनट में 1 दर्जे घूमती है, तो 60 मिनट में 15 दर्जे घूम जाती है। तो अब जिन 2 शहरों के दरमियान में 15 दर्जे का फासला होगा, उन 2 शहरों के दरमियान में वक्त के लिहाज से 1 घंटे का फ़र्क होगा, और जिन 2 शहरों में 7.5 दर्जे का फ़र्क होगा, उन 2 शहरों में आधे घंटे का फ़र्क होगा। हमारे और बांग्लादेश के दरमियान में, ढाका के दरमियान में चूँकि 15 दर्जे का फ़र्क है, पाकिस्तान 75 पर वाक़े है और ढाका जो है वो पाकिस्तान 75 पर वाक़े है और ढाका जो है वो 90 पर वाक़े है। तो 75 से 90 तक के दरमियान जो है तूल के तकरीबन 15 दर्जात बनते हैं, और हर दर्जे में 4 मिनट का फ़र्क होता है। तो 15 को 4 से ज़रब दो 60 मिनट हो गए। तो गोया कि हमारे और ढाका के टाइमिंग में 1 घंटे का फ़र्क है। गोया कि 1 घंटा पहले वहाँ सुबह होती है और हमारे यहाँ 1 घंटे के बाद सुबह होती है। वहाँ 1 घंटा पहले ज़वाल होता है और हमारे यहाँ 1 घंटे बाद ज़वाल। वहाँ अगर 1 बज रहा है तो यहाँ 12 बज रहे हैं, वहाँ अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ 11 बज रहे हैं। अब आगे चलते हैं लंदन की तरफ। तूल के जो खतूत होते हैं भाइयों दोस्तों, इनकी फ़ायदियत ये है कि इसके लिहाज से टाइम और तारीख़ें, इन 2 चीज़ों को जो है सामने रखा जाता है। आज हम चलते हैं वक्त की तरफ। मसलन लंदन से पहले ख़त पर जो 15 दर्जे है, तमाम साथियों के पास जब उस वक़्त तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी जब तक ऐसा ग्लोब ना हो और ऐसा मैप ना हो और तफ़हीमुल फ़ल्कियात और आसान फ़ल्कियात किताब ना हो, उस वक़्त तक उनको समझ में नहीं आएगा। ये साथी सारे नोट कर लें इस तरह। ये फ़न चूँकि है थोड़ा सा मुश्किल, तो इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। तो अब ख़त लंदन से पहले 15 डिग्री पर जो है गोया कि 1 घंटे का फ़र्क होगा, दूसरे 30 पर जो है 2 घंटे का ये टाइम दिए हुए हैं। यहाँ 45 पर 3 का, 60 पर 4 का, 75 पर 5 का, 90 पर 6 का, 105 पर 7 का, 120 पर 8 का, 135 पर 9 का, 150 पर 10 का, 165 पर 11 का और 180 पर 12 घंटे का फ़र्क होगा। अब मिसाल के तौर पर हमारे और लंदन के दरमियान में, चूँकि हम ख़त 75 पर हैं, तो हमारे और लंदन के दरमियान में टाइमिंग के एतबार से 5 घंटे का फ़र्क है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे हम यहाँ 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, तो वहाँ अभी हम पीछे जाएंगे, मसलन 6:30, 5:30, 4:30, 3:30 और 2:30। तो लंदन में इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, यानी लंदन हमसे गोया के तूल के एतबार से 75 डिग्री मगरिब की तरफ है। जो शहर मशरिक़ की तरफ होते हैं उनके टाइम पहले होते हैं, प्लस होते हैं, और जो शहर लंदन से मगरिब की तरफ होते हैं उनके टाइम माइनस होते हैं, यानी उनके औकात बाद में आते हैं। मिसाल के तौर पर लंदन से इससे इधर जो है गोया कि अगर लंदन में अभी इस वक्त 3:30 बज रहे हैं, तो लंदन से इस तरफ पहले 15 वाला ख़त जो है उस पर 2:30 बज रहे होंगे रात के, 30 पर जो है वो 1:30 बज रहे होंगे। इसी तरह -45 पर जो है वो नहीं, 2:30 के बाद जो है 3:30 रात के। इसी तरह 60 पर जो है वो 4:30 बज रहे होंगे। इसी तरह 75 पर जो है वो
दूसरी सुबह के गोया कि वो बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं, समझे नहीं। तो अब इतना फ़र्क है, यानी गोया के या लंदन में रात के जो है अभी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में, दोबारा समझाता हूँ, पाकिस्तान में अभी इस वक्त 7:30 बजे हैं, तो लंदन में अभी रात के 7:30 यानी 6:30, 5:30 और 3:30 और 2:30 और 1:30। लंदन में इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है। फिर दोबारा 7:30 बज रहे हैं, 6:30, 5:30, 4:30, 3:30, 2:30। लंदन में इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं। तो अब लंदन से इस तरफ पहले खत पर जो है -15 पर 1:30 बज रहे हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं। और इस तरफ मजीद जाए तो रात के 12:30 बज रहे हैं। और इस तरफ 45 पर जाएं तो रात के 11:30 बज रहे हैं। और मजीद 60 पर जाएं तो रात के 10:30 बज रहे हैं। 75 पर रात के 9:30 बज रहे हैं गुज़िश्ता रात के। 90 पर गुज़िश्ता रात के 8:30 बज रहे हैं। 105 पर गुज़िश्ता रात के 7:30 बज रहे हैं। 120 पर गुज़िश्ता रात के 6:30 बज रहे हैं। गोया कि हमारे यहाँ अभी 7:30 का टाइम हो रहा है और अमेरिका के किसी शहर में अभी शाम के यानी गुज़िश्ता रात जो शाम गुजर चुकी है उसके अभी जो है 6:30 बज रहे हैं। तो ये चूँकि तूल के जो खतूत होते हैं वो औकात को दिखा रहे होते हैं। यहाँ देखें ये घड़ियाँ दी हुई हैं, कुल 24 घड़ियाँ दी हैं। मैं आपको करीब करता हूँ ये ज़रा ताकि आपको नज़र आ जाए अच्छी तरह ये नक्शा। ये देखें ये ऊपर जो है घड़ियाँ दी हुई हैं। मिसाल के तौर पर ये पहली घड़ी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कुल 24 घड़ियाँ हैं। कुल 24 घड़ियाँ हैं। साथियों को चाहिए कि अपने लिए मैप ख़रीद ले, ताकि मैप के बग़ैर जो है पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। मैप अगर आपके पास होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के सबक में सिर्फ ये बात याद रखें कि तूल के खतूत से जो है वो औक़ात की तायीन होती है और तारीख़ों की चेंजिंग उन एतबारात से होती है। और अरस के खतूत का फ़ायदा क्या है, उसके लिहाज से मौसम और बहुत सारी चीज़ों पर वो होता है, दिन और रात का बड़ा छोटा होना। इस पर इंशाअल्लाह फिर हम आइंदा सबक में तफसीर करेंगे। तो आज का सबक मैंने मुख्तसर रखा है ताकि साथी परेशान ना हो। मुझसे साथी गिला करते हैं कि आपका सबक आधे घंटे पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा कोई देखता नहीं है। तो साथियों से गुजारिश ये है कि चलो मैं 15-15 मिनट का सबक रखूँगा, लेकिन आप शौक़ से पढ़ें और देखें। सिराज अली इब्न उमर सादिक मिन जामियत शेख यहया मदनी। और मैंने साथियों से कल कहा था कि अमली तौर पर कुल 41 खतूत मुझे दिखा कर बताएँ। तो साथियों ने व्हाट्सएप पर कुल 41 खतूत बनाकर मुझे पर्चे में बनाकर दिखाने होंगे। वस्सलाम अज़ इब्न उमर सादिक मिन जामियत शेख यहया अल मदनी।